Hello friends, in today's class we will discuss about displacement, velocity and acceleration of a particle in two-dimension motion. We will discuss about displacement of a particle. Displacement of a particle in 2D motion. Now, we assume that let a particle starts from point A. Particle starts from point A at time t1. Particle starts from point A at time t1 having coordinates x1 comma y1 and reaches to the final point B along the curve path. The curve path is shown by the dotted lines and reaches the point B after time t2 having coordinates x2 comma y2. Then displacement is, we know that displacement is the shortest distance between initial and final position. Initial position is x1 comma y1 whose position vector इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने एज्यूम कर लिया r1 वेक्टर. सिमिलरली बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर. सो ए टू बी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर हो गया. क्लियर. नाउ हमने मान लिया लेट a particle starts from point A. Points के coordinates x1 comma y1 at time t1 and reaches to point B and reaches to final point B having coordinates x2 comma y2 after time t after time t2 then position vector of point A is, पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया r1 वेक्टर इक्वल टू, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर इज x I कैप प्लस y j कैप एंड कोऑर्डिनेट्स आर x1 comma y1. सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2 वेक्टर इक्वल टू x2 I cap plus y2 j cap. So therefore displacement is the displacement vector delta r vector is equals to final minus initial position vector or delta r vector equal to r2 minus r1. r2 is x2 I cap plus y2 j cap minus r1 is x1 I cap plus y1 j cap और डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आई वाली टर्म को हमने कॉमन ले लिया. फाइनल इज x2 माइनस x1 ब्रैकेट के बाहर आई कैप कॉमन. सिमिलरली y2 माइनस y1 ये हो जाएगा j कैप और डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 इज द डिफरेंस of the x coordinate. It can be written as delta x I cap. Similarly difference in the y coordinate delta y j cap. This is the final position vector. ये क्या हो गई final position vector. Now clear. हमने क्या माना है किसी भी इंस्टेंट ऑफ किसी भी टाइम पर
t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है a पॉइंट पर। यहाँ पर इसका 2D प्लेन के अंदर इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1, y1। आफ्टर टाइम t2 इट रीचेस टू द फाइनल पोजीशन b पॉइंट। b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x2, y2 एंड position vector of point A with respect to the origin is r1 vector. Position vector of point B with respect to origin is r2 vector. So therefore displacement vector is line joining point A to B. Displacement vector क्या हो गया? A to B से join करने वाली line का position vector, जिसका हमने क्या मान लिया? डेल्टा r vector. So position vector हमें मालूम है क्या होता है? r1 vector equal to x1 i cap plus y1 j cap. Similarly position vector of point B is x2 i cap plus y2 j cap. अब we have to find the displacement. Displacement vector is delta r vector is equal to r2 minus r1 और substituting the values of r2 and r1. r2 और r1 की हमने वैल्यू का सब्सटीट्यूशन किया। i cap को हमने कॉमन लिया, j cap को हमने कॉमन लिया। सो x2 माइनस x1 क्या हो गया? डेल्टा x। y2 माइनस y1 क्या हो गया? डेल्टा y। दिस इज द पोजिशन वेक्टर। नाउ हमें मैग्नीट्यूड निकालना, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? Now, therefore, magnitude of displacement vector is magnitude of का सिंबल होता है मॉड्यूलस का साइन डेल्टा आर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मीन्स ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया? डेल्टा एक्स आई कैप एंड वाई कैप, ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे कैप। नाउ इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल इज ऑलवेज गिवन, दैट इज डायरेक्शन। Direction is always given in terms of tangent theta. Tan theta is equals to delta y upon delta x. Clear? Now, next is velocity. Velocity of a particle in 2D motion, 2D motion के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है। नाउ सेम वी आर गिवन द path of the particle is shown in figure। हमने क्या मान लिया? पार्टिकल का जो पाथ है, ये पाथ ए से पार्टिकल गया बी पॉइंट तक है, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हो गया। ये यहाँ पर पॉइंट ए पर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, और बी पॉइंट वाला हो गया आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, स्मॉल चेंज। सो चेंज ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? डेल्टा आर वेक्टर हो गया। नाउ इसको हम क्या लिखेंगे?
at time t1 and t2, at time t1 and t2, t1 and t2, the position of the particle, the position of the particle, the position of the particle are A and B. T1 पॉइंट पर हमने T1 टाइम पर हमने पोजीशन मान ली A पॉइंट, और आफ्टर टाइम T2 इसकी पोजीशन हमने मान ली B पॉइंट. ठीक है, आर ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स हमने क्या मान ली, आर वेक्टर. पोजीशन वेक्टर हमने क्या माने हैं, R1 वेक्टर को हमने R वेक्टर माना है, एंड R2 वेक्टर, R2 वेक्टर को हमने माना है R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर माना है. अब ये अगर आपका है तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल, therefore displacement of the particle, displacement of the particle in the time interval, in the time interval. Now time interval is given delta t, delta t means t2 minus t1. इस d2 minus t1 के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, becomes, the displacement becomes, displacement will be delta r, displacement will become delta r vector. So therefore average velocity, average velocity, average velocity, we know that it is the ratio, average velocity of the particle, average velocity of the particle is v vector average, v vector average is equals to ratio of the displacement to the time taken, displacement and time taken, or v average is equals to delta r vector, delta r vector we know that delta x I cap plus delta y j cap divided by delta t. Clear? Or delta x upon delta t into I cap plus delta y upon delta t into j cap. हमने इसको इधर भी डिवाइड किया, इधर भी हमने डिवाइड कर लिया. नाउ क्लियर यहाँ तक? So v average is equals to this one. अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, जिसका हम किससे लिखेंगे, वी एक्स से लिखेंगे. ठीक है, सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू, इसका हमने किससे लिख दिया, वी एक्स, ये रहेगा वी एक्स एवरेज का सिंबल ये हो गया आई कैप, प्लस ये रहेगा वी वाई, और ये रहेगा j cap. Clear? Now where vx and vy are the average velocities, are components of average velocities, are components of average velocity. These are the components of average velocity in x and y direction. x डायरेक्शन की वेलोसिटी ये रही डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी. ये वेलोसिटी हो गई, इसको हमने वी वाई, एवरेज है, एवरेज का सिंबल ये रहा. सिमिलरली ये वी एक्स हो गई, एवरेज का सिंबल हो गया. क्लियर? नाउ फॉर लिमिटिंग, इसका हम ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस. अगर हमें इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक लिमिट, है ना. हमने लिमिट ले ली, सो ये रहेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
वी एवरेज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, प्लस ये भी यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा जे कैप। जब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंटेनियस वी विल टेक लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। हमने क्या ले लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले लिया, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते हैं, वी एवरेज क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस, वो क्या बताएगा, एट द स्पेसिफिक मोमेंट। ये सिमिलरली स्पेसिफिक मोमेंट पर वेलोसिटी बताएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट स्पेसिफिक मोमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये बताएगा आपका वाई डायरेक्शन की स्पेसिफिक वेलोसिटी। नाउ सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वेयर वी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये जब लिमिट लेते हैं तब ये डेल्टा जो है, डेल्टा किस में बदल जाता है, डी के अंदर, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। इसको हम क्या लिखेंगे, फिर वी एक्स लिखेंगे। सिमिलरली डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, इसको हम क्या लिखेंगे, वी वाई लिखेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। magnitude of instantaneous velocity, instantaneous velocity. Now we know that instantaneous velocity v vector vx I cap plus vy j cap, so therefore magnitude is v vector का magnitude equal to एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। क्लियर? नाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, नाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर हमने मान लिया कि इसने रिजल्टेंट वेलोसिटी v वेलोसिटी ने x डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनाया है, तो इसको हम बनाएंगे ये हो गया आपका वेलोसिटी वी एक्स आई कैप, ये रहेगा वी वाई जे कैप, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, सो इससे आएगा टेन थीटा, इससे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वी वाई अपॉन वी एक्स आएगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। Acceleration of the particle in 2D, टू डायमेंशनल मोशन के अंदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई थी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, average velocity of the particle in 2D motion is average velocity क्या हो जाएगी, डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस
delta Vy j cap. Now हमने एवरेज वेलोसिटी ये मान ली और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मालूम है. सो एवरेज एक्सेलरेशन, therefore एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का ए एवरेज का ए वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है. और ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस ए वाई j cap, where del is equals to delta Vx upon delta t and Ay is equals to delta Vy upon delta t. ये जो चीज़ है ये क्या होती है, दे रिप्रेजेंट्स द एवरेज एक्सेलरेशन. ये क्या बताएंगे, दीज आर एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन के हमने एवरेज एक्सेलरेशन मान ली. अब हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है. सो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर आ गया ये. नाउ therefore instantaneous acceleration कैसा आएगा, a वेक्टर इक्वल टू टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स. तो ये तो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप, ठीक है. और ये हो जाएगा ए एवरेज इज इक्वल्स टू, ये जो चीज़ आएगी क्या आएगी, इसको हम लिखेंगे डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस ये हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी और ये हो जाएगा जे कैप. और ए वेक्टर इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस ये हो जाएगा ए वाई जे कैप. क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर. सो आई थिंक इट्स क्लियर. जब हम लिमिट लेते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेंगे, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी बाई डी टी. सिमिलरली ये भी हो जाएगा डी वी बाई डी टी, वाई कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट, डी वी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वाई. सो फाइनल आंसर इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. Clear? Now that's all for the day. In next class we will derive an expression for particle moving in circular motion. We will derive an expression for acceleration of a particle moving in a circular motion. Thank you.